दिख रहा है? Hello students. Today we are going to study our chapter named Life Process of class 10. In the last section we are discussing about living and non-living thing. From that very point we are going to start our discussion today. Before we are going to start this chapter, Life Process, tell me one thing. What is living thing? Because if you are well known about the living thing or what the living organism is, इस चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आपको लिविंग थिंग के बारे में एक अच्छी क्लैरिटी होगी, अगर आपको पता होगा कि लिविंग थिंग क्या होता है, then trust me, the whole chapter will become a cakewalk for you. Okay? So before moving towards the chapter, tell me one thing. What's the living thing is? For example, अगर कोई आपसे पूछे कि लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, तो आप उसको ये बता पाओगे कि सर जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो हील कर सकता है, जो रेस्पायर कर सकता है, जो ब्रीथ कर सकता है, जो ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं लिविंग थिंग, राइट? बट हियर इज द ग्लिच. हम ये जो बता रहे हैं ये लिविंग थिंग का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये 100% करेक्ट डेफिनेशन नहीं है. तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग को अगर डिफाइन करना हो तो हम सिंपली ये बता देते हैं कि लिविंग थिंग चल सकता है, लिविंग थिंग बोल सकता है, लिविंग थिंग सांस ले सकता है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन ये लिविंग थिंग का एक करेक्ट डेफिनेशन है. हालांकि सारे बुक्स में यही मेंशन होता है, बट द फैक्ट इज दिस इज नॉट द 100% करेक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी. तो इसका साइड डेफिनेशन क्या है? तो लिविंग थिंग का साइड डेफिनेशन ये होता है कि We all living organisms are made up of this fundamental basic unit that we call simply cell. तो सेल हर चीज में होता है, be it's a living thing, be it's a non living thing. दुनिया में हर किसी के पास सेल है, या वो नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो या लिविंग. फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, ये डस्टर बना है वुड से. ये जो वुड है, ये जो लकड़ी का पार्ट है, ये जो लकड़ी का हिस्सा है, कभी किसी समय में ये लकड़ी का हिस्सा पेड़ का हिस्सा रहा हो. ये जो लकड़ी का डस्टर है कभी भी पेड़ का हिस्सा तो रहा होगा ना. और जब ये डस्टर पेड़ का हिस्सा रहा होगा तब तो ये लिविंग पार्ट होता, तब तो लिविंग बीइंग था. लेकिन अभी ये पेड़ का हिस्सा तो नहीं है, तो अभी लिविंग बीइंग नहीं है. लेकिन जब ये डस्टर पेड़ का हिस्सा था तब इसके पास तो सेल था ना. जब इसको हम पेड़ से काट देते हैं तो क्या हमने इसका सेल बाहर निकाल लिया? सेल तो नहीं निकाला. दैट मीन्स सेल अभी भी इसमें है. Still the duster is not alive. Then what's the difference between a living cell and non-living cell, or a living organism and a non-living organism? So the basic difference between the living thing and non-living thing is that availability of cell. For example, anything which have a complete functional cell, anything which have a complete functional cell can be considered as living organism only. For example, this duster also have a cell and our skin, our cheek also have a cell. But the main difference is the cell present inside the duster and cell present inside in our cheek has two distinct character or major differences. What's the difference is that the cell present in our body is a free living cell. The cell present in our body is a fully functional cell, a living cell. But the cell present inside the duster, the cell present in the duster is a dead cell. It's not functional cell. The cell has lost the capacity to reproduce. The cell has lost the capacity to breathe. The cell has lost the capacity to reproduce. But the cell present in our body still has the capacity to do every function which is required to being in a living state. So whatever the function we do at our level, all the function performed by our cell also. For example, we can do breathe, we can respire, we can reproduce. At the cellular level, our cell also reproduce by just dividing the cell, increasing the number. Our cell also reproduce, our cell also breathe, and our cell also respire at the cellular level. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हम ये बता देते हैं कि कोई चल सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई श्वास ले सकता है, कोई रेस्पायर कर सकता है. This is not a correct definition of living thing. ये living thing के कैरेक्टर है. These all are features of living thing, but not the definition of living thing. For example, ये जो मार्कर है, मार्कर से हम लिख सकते हैं
ये मार्कर का कलर ब्लू है, ये मार्कर के पास कैप है, ये सारे मार्कर के फीचर है। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि मार्कर क्या होता है, सिंपली आप ये बोल सकते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम लिखने का काम करते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपनी लाइफ में एप्पल तो देखा ही होगा, एप्पल जिसे सेब बोलते हैं। तो क्या एप्पल ग्रीन हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। क्या एप्पल रेड हो सकता है? हो सकता है। एप्पल छोटा बड़ा साइज में हो सकता है। एप्पल का टेस्ट अलग अलग हो सकता है। तो ये जो एप्पल का अलग अलग साइज है, ये एप्पल का छोटा बड़ा साइज होना या उसका टेस्ट अलग अलग होना, एप्पल का कलर अलग अलग होना, ये सारे एप्पल्स के फीचर है। इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ एप्पल। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एप्पल इज, मतलब एप्पल क्या है, हम सिंपली ये बोलेंगे एप्पल इज अ फ्रूट, दैट्स इट। We are not going to describe the apple has multiple color, here apple has multiple shape, here apple has multiple taste. We are not going to describe this because these are the features of apple. This is not the definition of apple. So I hope you understand. Living thing क्या होता है? Anything which have I write this on the board. Anything which have a complete functional cell. Anything which have a complete functional cell, which considered take this down in your notes. Done it? Okay. So let's move. So now if we have a clear-cut understanding about what's the living thing is and what's the non-living thing is, now we are going to proceed our chapter, and the chapter name is life processes. अगर आप लिविंग थिंग समझ चुके हैं तो आप ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? So keep ourselves in living state. So being in a living state, we have to perform many functions. For example, हम बहुत सारे functions करते हैं। हम दौड़ सकते हैं, हम रेस्पायर कर सकते हैं, हम ब्रीथ कर सकते हैं, हम सिक्रीट कर सकते हैं, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। These all are functions a living thing can perform. But there are some function which is, if the living thing does not perform, they are not being alive. बहुत सारे फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे फंक्शन है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जो करना जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए। मतलब बेसिकली हर वो प्रोसेस जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिसके बिना हम लिविंग कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। ग्रोथ, भी तीन ही लेते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको तीन में मैं समझा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे तीन फीचर्स लिखा हूँ, ग्रोथ, ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। अभी मैं आपसे पूछूँ कि जो ग्रोथ है क्या ये लिविंग थिंग में होते हैं? आप बोलेंगे यस, लेकिन क्या ये लिविंग थिंग के फीचर्स हैं? क्या ये लाइफ प्रोसेस है? ग्रोथ होना, हमारे बॉडी में ग्रोथ होना भी एक प्रोसेस है, लेकिन क्या ग्रोथ एक लाइफ प्रोसेस है? जब भी मैं आपसे पूछूं कि लाइफ प्रोसेस, तभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हर वो प्रोसेस जो जिंदा रहने में मदद करता है, जिसके बिना एक ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है, उसको अपन बोलते हैं ग्रोथ, उसको अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता है
वो भी जिंदा रहे, ऑब्वियसली जिंदा रह सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ का भी एक स्टेज होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, हम बहुत ग्रो करते हैं। एक लाइफ के हम एक ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं जब हमारा ग्रोथ रुक जाता है। जैसे देखो अभी हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती है क्योंकि मैं मैक्सिमम हाइट को पीक कर चुका हूँ, रीच कर चुका हूँ। तो क्या अभी तो ग्रोथ हाइट में तो ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन क्या फिर भी मैं जिंदा तो हूँ ना। हर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है वो भी जिंदा है। दैट मीन्स जिंदा रहने के लिए बॉडी में ग्रोथ हो ही ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। एक कंडीशन में आकर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ सैचुरेट हो जाता है, मतलब वहाँ से अब ग्रोथ नहीं कर सकता है। जब वो अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर जाता है, मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर जाता है, वहाँ उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा तो है। दैट मीन्स जिंदा रहने के लिए ग्रोथ का कोई रोल नहीं होता। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर रहा है फिर भी वो जिंदा है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी अपने डेली लाइफ में बहुत ऐसे इंसान को देखा होगा जिनकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है, इनको ड्वार्फ बोलते हैं। तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई, वो ड्वार्फ रह गए, जिनको बॉर्डर भी बोलते हैं, छोटे रह गए वो। तो क्या वो जिंदा नहीं है? जिंदा तो वो भी है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा तो वो है ना। दैट मीन्स ये कहीं ये क्राइटेरिया को फुलफिल करती है कि ग्रोथ नहीं भी हो रहा है फिर भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं दैट ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ग्रोथ एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ एक ऐसे प्रक्रिया नहीं है जो हमें जिंदा रहने में मदद करता है। अगर ग्रोथ नहीं भी हो रहा है फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। सो वी कैन नॉट कंसीडर ग्रोथ एज अ लाइफ प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग, बट कीप दिस aside. Take first reproduction. First the reproduction is the production of new organism of the same kind, basically in a population to increasing the number of the same kind in a same species is called reproduction, or the production of organism of the same kind biologically is called reproduction. अगर रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकली। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकली प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब बताओ मेरे को, क्या रिप्रोडक्शन का कोई रोल है जिंदा रहने में? दैट मींस अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो क्या आप मर जाओगे? ठीक ना। दैट मींस अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं फिर भी भाई बहुत सारे दुनिया ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। अभी आप जिस कंडीशन में है, अभी आप जिस एज में है, आपने तो रिप्रोडक्शन नहीं करा हुआ अभी तक, लेकिन फिर भी जिंदा तो हो ना। दैट मींस रिप्रोडक्शन, या इट्स करेक्ट दैट यू आर कैपेबल टू डू रिप्रोडक्शन, यू आर इन अ मैच्योर प्यूबर्टी फेज, बट if you are not performing this particular process reproduction, this doesn't mean you are not gonna live, you are not gonna breathe, you are not gonna live. So reproduction is not a fundamental life process. अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छे से। इसका मतलब रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। हर वो प्रोसेस जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लेकिन क्या अगर एक ऐसा इंसान है या एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कुछ भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो आज तक रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, क्या वो मर गया? नहीं। हमारे आसपास में सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी जिंदा है। दैट मींस वी कंसीडर रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। Here a process is written that is